बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यूज़ एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए कॉमन से कुछ बने हैं। दोनों जगह ये काम आ सकते हैं। जो पार्ट 2 के स्टूडेंट होने चाहिए कि पार्ट 1 के जो रिलेटेड नज़र आएँ तब भी वो उन्हें करें, ताकि उनकी जो सेंस है वो बेहतर हो, वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो ये हमारे पास गालिबन 10वां लेक्चर नंबर 10 है सोशियोलॉजी का, और क्वेश्चन नंबर 1 है द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज़। इसमें ए है द डिज़ायर टू accumulate capital so one can spend it to show that one has it made, और B है Marx term for the driving force in the exploitation of workers। C है the ideal of a highly moral life, hard work, industriousness and frugality, none of the above। ये हमारे पास ऑप्शन है और दुरुस्त है नन ऑफ द अबव। कोई ऑप्शन भी इसमें दुरुस्त नहीं है। पॉलीथिज्म इज़ द बिलीफ। पॉलीथिज्म वाले क्या बिलीव करते हैं? डैट गॉड इज़ ए वुमन, डैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, डैट देयर वाज मैनी गॉड्स, डैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा पोली का जब लफ्ज़ आ गया तो ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, डैट देयर वाज मैनी गॉड्स। The religious with no specific founder is Islam, Hinduism, Buddhism, Confucianism। तो ये हमारे पास ऑप्शन है हिंदुइज़म का, जिसका कोई फाउंडर परफेक्ट हमें नहीं मिलता तारीख में। तो reincarnation is A option, is found only in Buddhism। Is the return of the soul after death in the same form। C है in the return of the soul after death in a different form। D है none of the above। और जवाब दुरुस्त है is the return of the soul after death in a different form। C ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। A cult is a new religious with few followers। B है has teaching and practices which put it at odd with the dominant cultures। C है is often at odds with other religions। D है all of the above। और हमारा जवाब दुरुस्त है all of the above। और secularization of religions occur as a result of industrialization, urbanization, mass education, all of the above। तो all of the above ये इस सिलसिले में दुरुस्त हैं। क्वेश्चन डैट साइंस कैनॉट आंसर इंक्लूड, कौन से हैं जवाब? ऑप्शन ए इज़ देयर ए गॉड, बी है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, सी है व्हाट हैपन व्हेन ए पर्सन डाइज, डी है ऑल ऑफ द अबव। Question number 8, as the economy weakens, people decide to postpone housing schemes, housing purchase. This decision weakens the economy further। This example reflects, इस example से क्या चीज़ें reflect हो रही है? The action view, the conflict view, the structural view, the Marxist view, the sociological view। the view जो दुरुस्त है ए हमारा जो है the action view। Question number 9, which of the following does not characterize the ideal assumptions underlying capitalism? Private property, the profit motive, free competition, from each according to ability and to each according to need। उसके बाद है जी ऑल आर आइडियल अजम्पशंस। इसमें से कौन सा है जो कैपिटलिज्म के साथ नहीं मार्क हो सकता? वो है हमारा डी ऑप्शन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू नीड, इन विच सिस्टम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड।
कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फैसिज्म। फैसिज्म में के बाद आ गया नन ऑफ द अबव। तो कैपिटलिज्म में ये हमारा दुरुस्त जवाब है। कैपिटलिज्म टेंड्स टू फॉर्म ए टोटल सिस्टम बिकॉज क्या सिस्टम में ए जो है हमारा मोर एंड मोर वर्कर्स बिकम सोशलाइज्ड इनटू द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। बी है मोर एंड मोर वेल्थ इज क्रिएटेड। सी है पीपल ग्रो accustomed the availability of material goods. D है capitalism has a built-in need to expand productions constantly and to see new markets. E है there is a close connection between the economic and the political system. Capitalism has a built-in need to expand production constantly and to seek new markets। हमारा डी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following statement is not consistent with Marx's view of capitalism? कौन सी इसके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है? कंसिस्टेंट होगी कैपिटलिज्म बेनिफिट mainly the owner of the means of production. The use of machines would help improve market productivity and equality of life. Capitalists are motivated only by the desire to maximize profit. और D है workers eventually will rise against the capitalists and will take control of all means of production। और हमारा ई जो है कैपिटलिज्म अल्टीमेटली विल बी रिप्लेस्ड बाय ए क्लासलेस सोसाइटी। और जवाब हमारा दुरुस्त है बी, द यूज ऑफ मशीन्स वुड हेल्प इम्प्रूव वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीनेशनल इज फॉल्स? दे ऑफन मैनिपुलेट द economics of the nation in which they operate. They often avoid government regulations, high taxes, and labor unions. They often have a significant impact on the political and social institution of the countries in which they operate. उसके बाद है they often help being about lower taxes and keep wages how to further their own growth। ये हमारे डी ऑप्शन हो गया और जवाब दुरुस्त है ऑल आर ट्रू। इनमें फॉल्स कोई नहीं है, सारे दुरुस्त हैं। मार्केट इज एनी प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज द मैकेनिज्म एंड that establish values for the exchange of goods and services, means the movement of vast amounts of goods across international brokers, international borders, all of the above। इसमें से कौन सा दुरुस्त होगा? ये सारे ही दुरुस्त हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ आर characterized by ये मार्केट इकानमी, सरप्लस इकानमी, सबसिस्टेंस इकानमी, मेंटेनेंस इकानमी और सबसिस्टेंट इकानमी कहलाएगी वो। इन पोस्टल एंड हॉर्टिकल्चरल इकोनॉमिक्स क्या होगी? सबसिस्टेंट इकानमी एग्जिस्ट, पीपल कल्टिवेट एंड ब्रीड ऑन एनिमल्स, द प्लो वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली, ट्रेड एक्सपेंडेड। और जवाब हमारा दुरुस्त है बी, पीपल कल्टिवेट एंड ब्रीड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर है 17, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर बेस्ड ऑन मैकेनिकल powered by fuels, created a surplus unlike anything the world had seen, were based on the invention of the steam engine। ये सी हमारा जूस था, ऑल ऑफ द अबव हमारा डी ऑप्शन है और जवाब दुरुस्त है डी, ऑल ऑफ द अबव। द टर्म conspicuous
consumption was coined by Thrastian Veblen, Emil Durkheim, Karl Marx, John Kenneth Galbraith, और जवाब है थॉरेस्टिन वेबलन। और दी पोस्ट इंडस्ट्रियल इकानमी वाज डिफाइंड बाय थॉरेस्टिन वेबलर, डेनियल बेल, जॉन केनेथ और मिल्टन। और डैनियल बेल जो है हमारा दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, पोस्ट इंडस्ट्रियल इकानमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए लार्ज सरप्लस ऑफ गुड्स, एक्सटेंसिव ट्रेड अमंग नेशन, a global village, all of the above दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 21, money as first used extensively in agriculture society, industrial society, post-industrial, postal and horticulture। तो जवाब हमारा दुरुस्त है एग्रीकल्चर। The total amount of a nation's good and services is referred to as the gross national product, the net national products, the national debts, the medium of exchange, the gross national products। हमारा दुरुस्त जवाब है the debit card come into existence in the agriculture economy, industrial economy, पोस्ट इंडस्ट्रियल इकानमी, नन ऑफ द अबव। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल इकानमी में ये डेबिट कार्ड शुरू हुआ था। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म हमारा डी जूस बेहतर है, दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 25, द ओनरशिप ऑफ मशीन्स एंड फैक्ट्रीज बाय इंडिविजुअल्स हु डिसाइड what to produce is state, socialism, laissez-faire capitalism, private ownership of the means of production, public ownership of the means of production, और सी दुरुस्त है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा MCQ थे सोशियोलॉजी के लेक्चर नंबर 10 में। और इंशाल्लाह उम्मीद है हम अख्ताम के करीब हैं, चंद एक बस और लेक्चर रह गया है इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे दूसरे सब्जेक्ट पर तवज्जो होगी। बहुत शुक्रिया।